آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ جے فلسطین کا نعرہ لگانے پر صدر مجلس کو عدالت کی نوٹس، 7 جنوری کو بیرسٹر اسدالدین اویسی کو پیش ہونے کا حکم۔ نائب صدر جمہوریہ ہند کا 2 روزہ دورہ تلنگانہ، جگدیپ دھنکر کسان سمٹ کی کریں گے صدارت۔ ملازمت کے لیے درخواست فارم پر GST، پرینکا گاندھی کی حکومت پر شدید تنقید۔ ممبئی کشتی سانحہ، جان پر کھیل کر 35 افراد کی جان بچانے والے عارف کی ستائش، ادھو ٹھاکرے نے پیش کی تہنیت۔ سابق چیف منسٹر کیسیا اور ہریش راؤ کو عدالت سے ملی راحت، میڈی گڈا کیس میں تحت کی عدالت کی نوٹس کل عدم۔ اور حیدرآباد کے مائلاردوپلی میں تھیلے سے نامعلوم شخص کی نعش دستیاب، کہیں اور قتل کے بعد یہاں لا کر پھینک دینے کا انکشاف۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیل نے شمالی غزہ کی پٹی میں اپنے پڑوسیوں اور رہائشی علاقوں میں واقع فوجی اڈوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر اور مقامی افراد کے حوالے سے پیر کے روز خبر دی ہے کہ اسرائیلی فوج شہری علاقوں میں بڑے پیمانے پر حملے کر رہی ہے۔ یہ خاندانوں کو یہاں سے الگ کر رہی ہے اور فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کی ایک جھیل میں کشتی میں دھماکے کے بعد لگنے والی آگ میں ایک شخص کی موت ہو گئی اور 5 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں منگل کے دن بتایا گیا ہے کہ فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے سے قبل ایک اور کشتی اس کی لپیٹ میں آ گئی، جس سے ایک شخص ہلاک اور 5 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق لاڈرڈیل مرینا میں نصب ارتھ کیمپ فیڈ کے سربراہ نظارے میں دھماکہ ہوا۔ جموں کشمیر میں منگل کو ہندوستانی فوج کا ایک ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ یہاں موصولہ اطلاعات کے مطابق پونچھ میں فوج کا ایک ٹرک 300 فٹ گہری کھائی میں گر گیا۔ حادثے میں 5 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، کئی فوجی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ فوج نے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 11 MLI کا آرمی ٹرک نیلم ہیڈ کوارٹر سے بلنوئی گھورا پوسٹ کی طرف جا رہا تھا۔ گھورا پوسٹ پہنچتے ہی حادثے کا شکار ہو گیا۔ فوجی ٹرک کے گہری کھائی میں گرنے کی اطلاع ملتے ہی کوئک ریسپانس ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے بچاؤ راحت کاری کے کام کیے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر 2 روزہ دورے پر چہارشنبہ 25 دسمبر کو تلنگانہ پہنچ رہے ہیں۔ نائب صدریہ اضلاع میدک اور حیدرآباد کا دورہ کریں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ حیدرآباد میں ایک پروگرام میں شرکت کریں گے اور میدک کے تنوکی میں انڈین کونسل آف ایگریکلچر ریسرچ میں کسانوں کی ایک سمٹ کی صدارت کریں گے۔ پارلیمنٹ میں حلف لینے کے بعد جے فلسطین کا نعرہ لگانے کے معاملے میں بریلی کے ضلع جج کی عدالت نے پیر کو صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے صدر مجلس کو 7 جنوری 2025 کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ لوک سبھا کے نتائج کا اعلان 4 جون 2024 کو ہوا تھا۔ حلف لینے کے بعد اسدالدین اویسی نے جے بھیم، جے تلنگانہ، جے فلسطین کے نعرے لگائے تھے۔ جے کو میں سنبھالنے والا ہوں، اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا۔ جے بھیم، جے میم، جے تلنگانہ، جے فلسطین، تکبیر، اللہ اکبر۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے نوکری حاصل کرنے کے لیے فارم بھرنے کے بجائے بے روزگار بچوں سے GST وصول کرنے کے سرکاری اقدام کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ صرف بے روزگاروں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوان نوکری حاصل کرنے کے لیے امتحانی فارم بھرتے ہیں، لیکن مودی حکومت ان بچوں سے GST وصول کر رہی ہے۔ اگنی ویر میں بھرتی کے لیے درخواست فارم پر بھی GST لگایا جا رہا ہے اور یہ ایسی صورتحال ہے جو بے روزگار نوجوانوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے۔ لوک سبھا میں قائد اپوزیشن کے سینئر قائد راہل گاندھی نے اشیاء ضروریہ کی آسمان چھوتی قیمتوں کے معاملے پر آج حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت کی پالیسی عام آدمی کے خلاف ہے، اس لیے مہنگائی کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔
राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई की वजह से आम आदमी का बजट तबाह हो गया है और ज़रूरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के करीब नीलकमल नामी कश्ती के हादसे के दौरान अपनी जान पर खेलकर 35 मुसाफिरीन को बचाने वाले आरिफ नामी मुस्लिम नौजवान को शिवसेना यूबीटी सरबरा उद्धव ठाकरे ने कल शब मातुश्री रिहायशगाह पर एजाज से नवाजा और उनकी कारकर्दगी की सताइश भी की। तकरीब के दौरान ठाकरे ने आरिफ की हाजिर दिमागी, दिलेरी और क़ुव्वत इरादी की सताइश की। इतलात के मुताबिक इस तकरीब में शिवसेना यूबीटी के लीडर बशमुल अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। कांग्रेस ने कहा है कि महात्मा गांधी की सदरत में मुनक्किदा तारीखी बेलगावी कन्वेंशन की 100वीं सालगिरह के मौके पर 26 दिसंबर को बेलगावी में ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तौसीह मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से 200 से ज़ायद अहम कायदीन शिरकत करेंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पावन खेड़ा ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस कमेटी की मीटिंग इस जगह महात्मा गांधी नगर में होगी। तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने कहा है कि 10 साल तक किसानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाली बीआरएस अब इख्तिदार से महरूमी के बाद भी किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मीडिया के लिए जारी एक बयान में श्रीधर बाबू ने कहा कि पेशरो बीआरएस हुकूमत ने रैतु बंधु के नाम पर जो गलतियां की थी, इन गलतियों को दुरुस्त करते हुए रैतु भरोसा स्कीम के जरिए किसानों की मदद करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अहम अपोजिशन बीआरएस गैर जिम्मेदाराना तौर पर रैतु भरोसा स्कीम से मुताल्लिक गुमराहकुन बयान देते हुए किसानों को गुमराह कर रही है। रियासती वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरिएट में इंदिरम्मा मकानात के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 4 या 5 जनवरी तक 80 लाख अफराद की दरखास्तों का डेटा हुकूमत तक पहुंच जाएगा जो मकानात के लिए दाखिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा मकानात के लिए जो खानदान भी अहल होंगे, उनके लिए अगर मरकजी हुकूमत मकानात की तामीर के लिए कोई माली इमदाद फराहम नहीं करती है तो भी ऐसी सूरत में रियासती हुकूमत अपनी तरफ से तमाम अहल खानदानों को इंदिरम्मा मकानात फराहम करेगी। साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर टी हरीश राव को राहत पहुंचाते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक हिस्सा मेडीगड्डा बैरेज को नुकसान पहुंचने से मुताल्लिक केस में तहत की एक अदालत की जानिब से जारी करदा नोटिस को मुअत्तल कर दिया है। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने इन नोटिसों को कल अदम करार देने की दरख्वास्तें दाखिल की थीं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अहकाम जारी किए। अदालत ने हुक्म दिया कि इन राजालिंगा मूर्ति को नोटिसें जारी की जाएं, जिनकी दरख्वास्त नजरसानी पर तहत की अदालत ने बीआरएस कायदीन को नोटिस जारी करने का हुक्म दिया था। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुनक्किद होने वाले इम्तिहानात में शिरकत और फिर सरकारी मुलाजिमत के हुसूल के ख्वाहिशमंद एक लड़की ने पीर की शब अशोकनगर में वाक़ हॉस्टल में शख्सी वजूहात की बास मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि जी सुरेखा ने हाल ही में ग्रुप 2 और 3 तक़र्राती इम्तिहान में शिरकत की थी। पीर की शब सुरेखा की अपने मंगीतर के साथ बहस हो गई। बादशाह जिले कामारेड्डी की रहने वाली इस लड़की ने अपने कमरे में फांसी ले ली। कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने कहा है कि हैड्रा की तश्कील के बाद आवाम में बड़े पैमाने पर शऊर पैदा हुआ है। एक खानगी न्यूज़ चैनल के फ़ोन इन प्रोग्राम में उन्होंने अवाम की जानिब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। इस मौके पर खिताब करते हुए रंगनाथ ने कहा कि तालाबों के FTL के हुदूद से मुताल्लिक़ तफसीलात का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। गूगल मैप के जरिए बफर जोन की तफसीलात हासिल करने का मौका फराहम किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हैड्रा की तश्कील से कब्ल इमारतों की तामीर से मुताल्लिक़ हासिल किए गए इजाज़तनामे कारकर्द रहेंगे। हैड्रा की तश्कील के बाद तामीर होने वाले गैर मजाज इमारतों को ही मुनहदम किया जा रहा है। पुलिस की बर्वक्त चौकसी के नतीजे में एक शख्स की जान बचा ली गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल में पेश आया। पुलिस को ज़िले के हसनीपल्ली तांडा में इसके अरकान ख़ानदान से फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शख्स की जान बचाई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने विकास को रोक दिया, जो गांव के मज़ाफ़ात में एक दरख्त से लटक कर इंतहाई इक़दाम करने वाला था। पुलिस को इसकी बीवी ने इस बात की इत्तला दी थी।
विकास अपनी बीवी के साथ झगड़े के बाद खुदकुशी करना चाहता था। विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने मंगल को हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर धावे किए। इन धावों के दौरान गैरकानूनी टेंडर तलब करने की शिकायत का जायजा लिया गया। धावे करने वाली टीम ने HCA के दफ्तर के तमाम रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया। बताया गया है कि कांग्रेस रुकनी असेंबली C किरण कुमार रेड्डी की शिकायत पर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट के अहदेदारों ने ये धावे किए। रिपीट, पुलिस ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मशहूर माओनवाज बालमुरी नारायण राव उर्फ प्रभाकर को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। नारायण राव 4 दहाइयों से रोपोश था। वो एक बड़े नक्सल लीडर M लक्ष्मण राव का करीबी रिश्तेदार है जो CPI माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी था। गिरफ्तार माओनवाज लीडर माओनवाज पार्टी के मोबाइल पॉलिटिकल स्कूल का इंचार्ज था जो नौजवानों में माओनवाज नजरियात की तरकीब देने के लिए जाना जाता है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन से पुष्पा 2 की नुमाइश के दौरान शहर हैदराबाद की संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े में एक खातून की मौत के सिलसिले में पूछताछ की गई। चिक्कड़पल्ली पुलिस ने आज उनसे 3 घंटों तक पूछताछ की। अदाकार को मंगल की सुबह 11 बजे पुलिस के सामने पेश होने की नोटिस जारी की गई थी। इस नोटिस के मिलने के बाद इनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अदाकार ने पुलिस स्टेशन जाने से पहले अपने मुद्दाहों को हाथ हिलाकर जवाब दिया। अल्लू अर्जुन पहले कह चुके हैं कि उस मामले में जांच में ताउन करेंगे। 21 साला समीर के कत्ल के सिलसिले में पीर 23 दिसंबर को पोयनपल्ली पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असल मुलजिम मुशीराबाद का रहने वाला मोहम्मद शब्बीर है जो कि समीर का ससुर बताया गया है। समीर ने अपने ससुर शब्बीर की मर्जी के खिलाफ उसकी बेटी फिरदौस से शादी की थी। शादी के बाद शब्बीर समीर पर तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए दबाव डाल रहा था। धमकियों के बावजूद समीर बाज न आया। आखिरकार शब्बीर, उमर और दीगर 3 ने 21 दिसंबर को चाकू से हमला करके नौजवान का कत्ल कर दिया था। शहर के इलाके माइलार्देपल्ली में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब पुलिस को थैले से एक नामालूम शख्स की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक नामालूम शख्स की नाश एक थैले में दस्तयाब हुई और नाश मशशुदा हालत में पाई गई। शुबा किया जाता है कि किसी और मुकाम पर कत्ल करने के बाद मकतूल की नाश को थैले में डालकर माइलार्देपल्ली के दुर्गानगर इलाके में लाकर फेंक दिया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके नाश को पोस्टमार्टम और शनाख्त की गर्ज से उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया है। हैदराबाद की काले पत्थर पुलिस ने सुबह के औकात में घरों में सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्ज़ाम में एक खातून और उसकी मदद के इल्ज़ाम में उसके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त सलीम और जकिया के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक मकान से 40 तोला वजनी तिलाई जेवरात का सरखा किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने CCTV फुटेज और फिंगरप्रिंट्स का जायजा लेते हुए शवाहिद इकट्ठा किए और शुबे की बिना पर जब खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने इक़बाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये खातून इससे पहले भी 8 मुक़दमात में मुलव्विस बताई गई है। वो सुबह के औकात में जब मर्द हजरात नमाज की अदायगी के लिए जाया करते और ख़वातीन महूक़ाब होती उस वक्त मकानात में सरखे की वारदातें अंजाम दिया करती थीं। 40 तोला वजनी तिलाई जेवरात में से पुलिस ने 20 तोला वजनी तिलाई जेवरात बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करता यौमिया मौसमी रिपोर्ट में मुतल्ला किया गया है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को चंद अजला में बारिश हो सकती है। आइंदा 5 दिनों के दौरान अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहेगा। जय फलस्तीन का नारा लगाने पर सदर मजलिस को अदालत की नोटिस। 7 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को पेश होने का हुक्म। नायब सदर जमहूरिया हिंद का 2 रोज़ा दौरे तेलंगाना। जगदीप धनकर किसान समिट की करेंगे सदारत। मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त फॉर्म पर GST। प्रियंका गांधी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। मुंबई कुश्ती सानहा जान पर खेलकर 35 अफराद की जान बचाने वाले आरिफ की सताइश। उद्धव ठाकरे ने पेश की तहनीत। साबिक चीफ मिनिस्टर KCR और हरीश राव को अदालत से मिली राहत। मेडीगड्डा केस में तहत की अदालत की नोटिस कल अदम।
اور حیدرآباد کے مائلاردیوپلی میں تھیلے سے نامعلوم شخص کی نعش دستیاب، کہیں اور قتل کے بعد یہاں لا کر پھینک دینے کا انکشاف۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔